Good afternoon, all of you. Yeah, when I asked about the homework questions, I didn't get any reply. Okay. Why this attendance number is going down and down? Is there some issues? I think in last 1 week there are many students who joined. When it comes to attendance, I don't know why it shows poor attendance. About 83 students in the group. 80 students approximately in the group. Okay. Till now, any doubts? Did you go through the worksheet? Yes. So when I take lots of time, you could see that it's all tagged by me. So it takes a lot of time, to prepare the worksheet. And after that, if I get such poor response, I told you, it would be very disappointing for me. So even I saw I forget class 10, then I also sit and relax at home. ठीक है ना मैं भी कोई पीडीएफ और नोट्स भेज देती हूँ रेडीमेड वाले वीडियोस के लिंक भेज देती हूँ एंड देन यू वॉच आराम से और यू डोंट वॉच आप लोग मुझे डिसअपॉइंट कर रहे हो ठीक है फिर मोटिवेशन नहीं रहता कुछ भी नया या अलग से करने के लिए so please see to it that you pay attention attend the class and थोड़ा सा voluntarily मुझे मैं हर बार आप लोगों से हेल्प मांगती हूँ but when there is nothing works out or at least you let me know if you're trying that please find out from your friends that why are they not attending see now the result is out so first of all you all officially welcome to class 10 right दूसरी चीज कि नाउ प्लीज थोड़ा सा एक अपना जो ग्रुप है पर्सनल या अपने क्लास वाइज जो ग्रुप है प्लीज फाइंड इट आउट दैट व्हाई आर दे नॉट कमिंग फॉर द क्लास प्लीज ऑल ऑफ यू प्लीज आप देखिए अपने फ्रेंड्स को भी रिमाइंडर दीजिए that and now see one thing I can make you sure that I'll be taking class your 10th class at 2 o'clock ठीक है हफ्ते में 3 बार लूंगी and I think by today or tomorrow the timetable would come your class teachers will definitely guide you for the timetable तो हो सकता है कि बहुत सारे जन यूट्यूब लाइव पे आ जाए या जो भी है एक फिक्स आवर होगा राइट जैसे कि आपका इंग्लिश टीचर कोई भी टाइम पे आपके मैसेज कर रहा है या मैथ्स टीचर डाल रहे हैं होमवर्क वैसे नहीं होगा you have the proper timetable so according to the timetable like in a day 2 or 3 it may be given as per the classes so you will get the timetable and accordingly you have to follow it तो वो थोड़ा सा एक प्लान अप हो जाएगा यू विल कम टू नो ऑल्सो दैट विच आर द डेट्स आई बी टेकिंग अ टेस्ट जो मैं थोड़ा सा वो कर रही हूँ कन्वीनियंस पे तो हफ्ते में 3 बार हमारे क्लासेस होंगे सो द डेज विल कम टू यू सो विल फॉलो अप द शेड्यूल एंड 2 o'clock तो और भी किसी का यदि क्लास प्लान होता है प्लीज रिमेम्बर 10th ABC ये बहुत सारे हैं यहाँ पे 10th भी स्पेशली 2 o'clock जो भी हमारा टाइम होगा जिस दिन मैथ्स का शेड्यूल है तो let the teacher also be informed that 2 o'clock is my class okay so I'll begin with the classes I'm not waiting for the others to start come and join me okay I'll start with the class so जो अभी तक हमने क्लास 10th का ये चैप्टर 1 रियल नंबर्स किया है तो फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट आर रियल नंबर्स जो हमने देखा है basic knowledge of your class 9 secondly we started with Euclid's division lemma and you on which Euclid's algorithm is based on using that we try to find the HCF of two given numbers उसका एक एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन जो मैंने अभी नहीं लिया बट आई हैव गिवन इट इन वर्कशीट उसके बाद वी वेंट टू द प्राइम नंबर्स एंड कॉम्पोजिट नंबर कॉन्सेप्ट ऑफ आवर ओल्ड क्लासेस एंड वी यूज दैट देन को प्राइम नंबर्स देखे देन वी वेंट बैक अगेन विद द इरेशनल नंबर्स ठीक है तो उसमें जो टू प्रूव दैट रूट 3 एंड रूट 5 आर इरेशनल नंबर्स एंड देन वी सॉ दैट कॉम्पोजिट नंबर कॉन्सेप्ट उसके बाद अगेन हमने लिया दैट 2 raised to n और 4 raised to n कैन नॉट एंड विद डिजिट 0 उस टाइप के सम्स लिया लास्टली हमने देखा कि टर्मिनेटिंग डेसिमल्स में डिनोमिनेटर क्या होता है 2 raised to m into 5 raised to n फॉर्म तो कितने डेसिमल तक रहेगा आंसर बिना डिवीजन के हाउ कैन वी फाइंड इट आउट तो ये सारे सम्स हमने देख लिए एंड इवन आई हैव डिस्कस द वर्ड प्रॉब्लम विद यू और मैंने वर्कशीट में दिए हुए हैं and it's a request to you that when I'm working so hard with the worksheet along with that I'm doing my work perfectly so I do expect you also to go for with the perfection okay at least to be on time and complete your work I could see that the completion is not on regular basis
सो प्लीज अब 24/7 आप घर पे है, आपको घर बैठे काम करना है, ना स्कूल आना है, ना स्कूल का होमवर्क, ना ट्यूशन का होमवर्क, इतना वैरायटी तो नहीं है तुम्हारे पास, कम है वर्क कंपैरेटिवली. सो सी टू इट दैट यू प्लीज मेंटेन योरसेल्फ, डोंट बी सो लेथार्जिक. ओके, अब यहाँ पे हम एक लास्ट टाइप की क्वेश्चन डील करने जा रहे हैं. इट्स अ थियोरेटिकल टाइप क्वेश्चन. व्हाट डज इट से? तो बिफोर गोइंग फॉर एक्चुअल क्वेश्चन, एक फिर से हम एक पैटर्न ऑब्जर्व करते हैं, ठीक है? यदि ये पैटर्न आपको समझ में आती है, देन यू विल अंडरस्टैंड द क्वेश्चन. नो डाउट प्रेजेंटेशन इज टोटली थियोरेटिकल, तो वो थोड़ा सा एक आपको पैटर्न राइटिंग प्रैक्टिस करनी है, बट ट्राई टू अंडरस्टैंड द क्वेश्चन पॉइंट ऑफ इट. ओके, कि किस तरीके से ये क्वेश्चन बन रहे हैं. तो पहले ऑब्जर्व करते हैं पैटर्न को. तो जैसे कि मैं सिंपल नंबर्स लूँ, काउंटिंग नंबर्स यदि मैं काउंटिंग लेती हूँ, तो 1 2 3 4 5 6. So you all are aware of this. Okay. Now if I say कि यहाँ पे even numbers, तो that is also you are familiar with it. What are the even numbers? तो आप कहोगे मुझे 2 4 6, and if I continue further 7 8 dash dash are even numbers, isn't it? पर यदि मैं आपको ये कहूँ कि मुझे कुछ जनरलाइज फॉर्मूला बताइए. ओके, आपने इक्वेशन सीखा, आपने पॉलिनोमियल सीखा, आपने क्लास 6 में पैटर्न सीखी, आपने एल्जेब्रा की एप्लीकेशन सीखी. तो मुझे यहाँ पे इवन नंबर को कुछ जनरलाइज फॉर्म में डालना है, तो मैं कैसे लिखूंगी? यूजिंग सम वेरिएबल. इफ आई हैव टू राइट एनी इवन नंबर, हाउ विल यू डिस्क्राइब इट? प्लीज कैन यू थिंक ओवर इट. ओके, तो यदि आपको मेरा क्वेश्चन नहीं समझ में आ रहा, तो लुक एट दिस एग्जांपल 2 4 6 8. तो इसका मतलब ये हुआ, if I go further, that means there is some number 2n or maybe 2x or maybe some 2p. So any alphabet 2n, where n is any natural number. तो आप फिर से n में 1 डालिए, तो 2 1 2, n में 2 डालेंगे, 2 2 4 6 8, so on. So that means I can express, yeah, you're right, Purvi. It could be 2q or 2n or 2x. It could be anything. उसी लॉजिक से क्या आप मुझे ऑड नंबर को डिस्क्राइब कर सकते हैं? इसी तरीके से ऑड नंबर, where n is natural number. ठीक है, could you describe? आप सोच सकते हैं कि ऑड नंबर की डेफिनेशन क्या होगी यहाँ पे? Isn't it 2n minus 1? क्योंकि प्लस लिखोगे तो डायरेक्ट 3 पे पहुंच जाएगा, एंड यू वांट 1 आल्सो. और मेरा n यहाँ पे नेचुरल नंबर है, तो 2 1 नहीं, दैट्स व्हाट आई वाज सेइंग. इट विल नॉट बी प्लस, इट वुड बी माइनस हियर, क्योंकि मुझे n नेचुरल नंबर लेके चलना है. मेरा लोएस्ट नंबर 1 है, तो इफ आई पुट 2n plus 1, तो 2 into 1 plus 1, 3 हो गया डायरेक्टली. तो my 1 is missing. Okay, so it would be 2n minus 1. ठीक है, अब ये क्वेश्चन समझ में आया. तो if I take 2n or if I take 2n minus 1, please listen to me. जब मैं कोई भी 2n को 2 से डिवाइड करती हूँ, कोई भी इवन नंबर को मैं 2 से डिवाइड करती हूँ, so it will be completely divisible. Completely divisible का मतलब क्या होगा? The remainder is 0. So you will say yes ma'am, क्योंकि divide by 2 है तो simple हो गया. Okay, now listen to my question. Can I say all positive odd integers? समझ में आ रहा है? All positive odd integers. It could be 2n minus 1 when n is 1 2 3 4. I could describe it as 2n plus 1 when n is a whole number. ठीक है, ये दोनों वैसे सही है. जब मेरे पास यहाँ 0 है, तो मुझे फर्स्ट नंबर 1 मिल जाएगा. ठीक है ना? So I hope this is clear to all of you. जब मैं नेचुरल नंबर से स्टार्ट करती हूँ, तो मैं 2n minus 1 से डिस्क्राइब कर सकती हूँ. जब मेरे पास 0 है, तो मैं 2n plus 1 से भी डिस्क्राइब कर सकती हूँ. तो if I take any form, ठीक है, for example, if I'm taking it here, say 2n minus 1. So please listen to me. Can you tell me, if I divide any 2n minus 1 number with 2, what would be the remainder? थोड़ा सा दिमाग लगाइए, सोचिए और बताइए. और या तो मैं कहूँ कि if I divide any 2n plus 1, अब मैं यहाँ 2n plus 1 deliberately ले रही हूँ. Let me see what I have given the answer. If I divide any 2n minus 1 plus 1, okay, मुझे यहाँ पे 1 नहीं चाहिए क्योंकि 1 2 से छोटा है. If I divide any 2n plus 1 by 2,
what would be the remainder? Okay, can you think of it? That means, in general, what I'm saying, you divide all odd numbers. तो क्या रिमाइंडर आ रहा है आपका? Yes, it is always one. 3 को 2 से डिवाइड करो, रिमाइंडर 1 आ रहा है. 5 को 2 से डिवाइड करो, रिमाइंडर 1 आ रहा है. 7 को 2 से डिवाइड करो, रिमाइंडर 1 आ रहा है. Isn't it? तो अब मेरा क्वेश्चन प्लीज सुनिएगा. कोई भी नंबर, जस्ट कोई भी नंबर, इवन और कोई भी नंबर, कोई भी यदि आप कंपोजिट नंबर लेते हैं, तो मैं पॉजिटिव नंबर्स की बात कर रही हूँ, ठीक है, तो नेगेटिव नहीं लेंगे हम यहाँ पे. तो यदि मैं कोई भी नंबर, आपके दिमाग में जो भी टू डिजिट छोटा बड़ा कोई भी नंबर आ रहा है, यदि मैं उसको 2 से डिवाइड करूं तो मुझे रिमाइंडर्स क्या मिलेंगे? थिंक एंड टेल मी व्हाट विल बी द रिमाइंडर्स व्हेन यू डिवाइड एनी पॉजिटिव इंटीजर बाय 2. Okay, so what you get the answer is either remainder is 0 or you get remainder as 1. ठीक है? I hope I'm very clear with this. बेसिक पे जा रही हूँ फिर से, ठीक है? तो यही सारे केसेस. Similarly, if I divide any number with 3, कोई भी नंबर को आप 3 से डिवाइड करोगे, ये मैंने पहले भी आपको एक्सप्लेन किया. यदि अभी भी ये टॉपिक क्लियर नहीं है तो यू कैन वॉच द फर्स्ट क्लास ऑफ यूक्लिड्स डिवीजन लेमा. ठीक है? तो यदि मैं कोई भी नंबर को 3 से डिवाइड कर रही हूँ तो मुझे रिमाइंडर इन दैट केस क्या मिलते हैं? 0, 1, 2. तो क्यों? क्योंकि आपको पता है दैट रिमाइंडर इज ऑलवेज स्मॉलर देन द डिवाइजर, इजंट इट? तो उसी लॉजिक के साथ हम जाते हैं. सपोज आई डिवाइड बाय 5, सपोज आई डिवाइड बाय 16, you get some numbers and we can arrange them in the patterns. अब मैं एक दूसरी पैटर्न दिखा रही हूँ, थोड़ा सा थियोरिटिकल है, तो प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड. फिर मैं एग्जैक्टली सम के पास जा रही हूँ. You all have learned about the square of a number, isn't it? Okay, so you know the squares of a number. It is 1, 4, 9, 16. 4 का square then it is 25, 36, 49, 64, 81. Okay, so look at this now. इस स्क्वायर को, इस कोई भी स्क्वायर लेंगे, ठीक है ना, जो मतलब कि बड़ा होगा उस नंबर से बड़े पे जाएंगे. इफ आई टेक एनी स्क्वायर अदर देन 1, 1 को छोड़ देना बिकॉज इट इज स्मॉलर देन 2, तो मैं उसको कंसीडर कर. इफ आई टेक ऑल द स्क्वायर ग्रेटर देन 2 का स्क्वायर, यहां से कैन यू राइट इन फॉर्म ऑफ 2 मल्टीप्लाई बाय समथिंग? I hope you get my question. I want you to write 4 as 2 multiplied by something plus something. आपका जो यूक्लिड्स डिवीजन लेमा है, वैसे क्या इसको आप एक्सप्रेस कर सकते हो? 9 could be written as 2 मल्टी, तो मैं 2 is a divisor. तो आप क्या इसको a is equal to b cube plus r में डिस्क्राइब कर सकते हो? Suppose b is 2 here. Okay, b is 2 and a is, what is a? Square of a number. तो क्या आप इसको डिस्क्राइब कर सकते हो? आई होप आपने पेज में कुछ स्टार्ट में रखा हो, तो आप मुझे इसका आंसर बता सकते हो कि व्हाट विल बी दिस. सपोज इट इज 16, then it is 2 multiplied by something plus something. If I say 25, it would be 2 multiplied by something plus something. Could you, is it possible? I'm waiting for you to answer me, please. Okay, look at it. यदि नहीं समझ में आ रहा है, so please you be with me, be connected and try to understand the concept. तो 4 है. अब मैं 4 को कैसे लिख सकती हूँ? 2 2s are, I'll just write for a different one if you can understand. So can I write this as 2 into 2 plus 0? Isn't it? Same way 9. I could write 9 as 2 4s are 8 plus 1. Again 16. So 2 8s are 16 plus 0. 25. 2 12s are 24 plus 1. Isn't it? So with this logic, इसका मतलब मैं इसको जनरलाइज करूं तो देखिए आप, जब भी मैं परफेक्ट स्क्वायर को, ओके, ये मेरा स्क्वायर ओके, सिर्फ परफेक्ट स्क्वायर है कोई नंबर, और उसको मैं जब a इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर से मेरा a इज एक्स स्क्वायर परफेक्ट स्क्वायर है, तो ये हमेशा 2 इंटू सम नंबर प्लस 0 या तो 2 into some number plus 1 फॉर्म में जा रहा है. Can I say this? Are you getting the confusion?
जैसे मैंने जनरलाइज किया, मैंने ये नंबर पैटर्न दी तो ऑब्जर्व की कि या तो मेरा रिमाइंडर 0 मिल रहा है या तो मेरा रिमाइंडर 1 मिल रहा है, और यहाँ पे ये ऑलवेज मल्टीपल ऑफ 2 में जा रहा है, इस तरीके से आ रहा है। आर यू गेटिंग इट? ओके, उसी लॉजिक से इफ सपोज अभी भी समझ में नहीं आया है, इफ यू आर स्टिल कंफ्यूज, पे अटेंशन, लुक एट द सेकंड पार्ट ऑफ इट। अब मैं सेम चीज आपको कह रही हूँ, आई वांट यू टू डिवाइड इट बाय 4, sorry, I want you to divide it by 3. So 4 is equal to 3 is a divisor. My B is 3 here. 3 into something plus something. 9 is equal to 3 into something plus something. 16 is equal to 3 into something plus something. Up to I think आप लोगों को strike हो रहा होगा what I'm expecting from you. Could you? 3 multiplied by plus something. Isn't it? अब कुछ strike हो रहा है अब सबको. I think there are 25 children with me. So quickly, are you getting the idea? Just मुझे yes or no में भी respond करोगे तो मुझे थोड़ा सा अच्छा लगेगा. And I write 3 ones are 3 plus 1, isn't it? Or अब 3 threes are 9 plus 0. 3 5s are 15 plus 1. 3 8s are, I want the generalization from you. Okay, please try to generalize. 3 8s are 24 plus 1. इसका मतलब जो भी परफेक्ट स्क्वायर है यदि मैंने उसको 3 से डिवाइड की है तो मुझे किस फॉर्म में मिल रहा है? और कोई थर्ड ऑप्शन है? लेट्स गो फॉर सम बिगर नंबर एंड ट्राई. से सपोज 81, तो 81 तो 3 का ही मल्टीपल है. ओके, अदर देन 3 का मल्टीपल, इफ आई ट्राई 121, तो 3 121, लुक एट इट, 3 into 40 plus 1. तो क्या लॉजिक आया आपका? यहाँ पे भी जब भी मैं 3 से डिवाइड कर रही हूँ तो या तो मुझे मिलेगा इट इज 3 फॉर्म या तो मुझे मिलेगा 3 plus 1 फॉर्म. ओके, अब एक और, and then we conclude it, and then we go with actual sum. Same thing, I want you to divide it by 5. Come on, let me quickly get the answers from you, please. Suppose, तो naturally मैं 4 नहीं consider करूंगी, मैं 9 से शुरू करूंगी because उससे greater है. So 9, 5 into something plus something, 16 into something, I mean 16 is equal to 5 multiplied by something plus something, 25. तो इस तरीके से जब हम कर क्या रहे हैं यहाँ पे, that 5 ones are 5 plus 4, 5 threes are 15 plus 1, 25, 5 fives are, say next round is 36, it is 5 sevens are plus 1, 49, 5 nines are 45 plus 4. If I go for next 64, आप मुझसे एक हिंट दे रहे हो ये क्या चल रहा है ये प्लीज. प्लस प्लस 4 है राइट. तो आप ऑब्जर्व करोगे तो यहाँ पे जब मैंने डिवाइड बाय 5 लिया तो इट इज 5 क्यूब, या तो इट इज 5 क्यूब प्लस 1, या तो इट इज 5 क्यूब प्लस 4. तो इन शॉर्ट व्हाट आई मीन टू से इज, ओके, इस सारे तरीकों से आपको क्या समझ में आ रहा है? आई होप यू आर ऑल विथ मी एंड यू अंडरस्टैंड. इसका मतलब ये हुआ कि आप कोई भी नंबर्स हैं, सिंपल नंबर्स हैं या तो उसके स्क्वायर्स हैं या तो उसके क्यूब्स हैं, आप बैठ के सिंपल बैठ के आज यही करना ना, आप नंबर्स के साथ देखिए कोई पैटर्न बना रहा है, तो ये हमेशा कोई ना कोई एक पैटर्न बना रहा है. फाइन. तो आपको जो क्वेश्चन आएंगे वो आपको पैटर्न बनाने नहीं है, आपको जो पैटर्न दिए हुए हैं उसको प्रूव करना है यूजिंग यूक्लिड डिवीजन लेमा. So I take the first question for this. So it is more of a theoretical one which you have to write it down. Or इसमें yes from reference book there are complicated ones, so you don't have to go with very complicated. We go with the textbook ones, and there are few which has come in the exams before. We'll be dealing with those questions. Okay. तो मेनली ये सेशन में आपके इसके साथ ये चैप्टर भी एंड होगा. यहाँ पे इस सेशन के साथ ही we'll discuss this questions. इसमें जो 2-3 इंपॉर्टेंट है वो डील करेंगे, एंड बाकी मैं सॉल्व में आपकी वर्कशीट में दूंगी, वर्कशीट फॉर्म में, सो विच विल हेल्प यू टू अंडरस्टैंड. फाइन. उसमें कोई भी डाउट हो तो आप मुझे ग्रुप में कॉल करके वी कैन डिस्कस ऑल्सो. ओके, सो आई एम टेकिंग अ वेरी सिंपल क्वेश्चन ऑफ आवर टेक्स्ट बुक. Show that every positive even integer is of the form 2 cube. Okay, show that. I'm writing down the question. Show that every
even positive integer का है, even integer is of the form 2q, okay, and odd is of the form 2q plus 1. तो ये अभी हमने देखा इवन 2q and odd 2q plus 1. तो आपको इसको जब लिखना है तब थोड़ा सा इसको गाइडेंस, मतलब आपका जो व्हेन आई सेंड द वर्कशीट एंड द सॉल्यूशन, आपको वो गाइडेंस के फॉर्म में रखना है कि भाई किस तरीके से मुझे प्रेजेंटेशन रखना है. तो अभी आपने देखा कि हमने जस्ट नाउ वी सॉ दैट एवरी नंबर डिविजिबल बाय 2 इट इज आइदर इन द आइदर इट इज अ मल्टीपल ऑफ 2 और इट इज हैविंग रिमाइंडर 1. तो इसी को हम जनरलाइज में लिखेंगे दैट बाय यूक्लिड डिवीजन लेमा व्हाट वी नो a is equal to bq plus r. बराबर है. अब यहाँ हमारा b क्या है, तो जो ये क्वेश्चन होगा, ओके, ये जो फॉर्म है ये 2, तो ये यहाँ पे हमें दिखाता है b is 2. और जब हमें b मिल जाता है दैट इज हमें जब डिवाइजर मिल जाता है, इसका मतलब ये हुआ कि हमें रिमाइंडर पता है, क्योंकि हमने लॉजिकली देखा कि रिमाइंडर हमेशा उससे छोटे नंबर्स होते हैं. तो कौन कौन से नंबर्स हुए, तो दैट मीन्स रिमाइंडर इज बिटवीन 0 and 2. तो दैट मीन्स रिमाइंडर क्या हो गया आपका 0 या तो 1, isn't it? तो यहाँ पे हमारे पास दो केस हुए. ओके, तो इस दो केस में यहाँ पे क्या है, a is equal to 2q plus 0 या तो a is equal to 2q plus 1. And you know a is equal to 2 into q which is even, ये आपको पता ही है. और यहाँ पे a is equal to 2q plus 1 which is even plus 1. So we get this as odd. So which is odd, and you will write that yes. Hence we can say that either the number is of even or is of the odd form, that is 2q form or 2q plus 1 form. Okay, ये बहुत ही सिंपल वाला कॉन्सेप्ट है, इसलिए मैं इसका रिटर्न प्रेजेंटेशन आपको डायरेक्ट दूंगी. Now going for the question which is there in your textbook. Okay, I'll take down that question. Okay, the question says, please pay attention to the question. थोड़ा सा मुझे लिखने में टाइम लगेगा because it's यहाँ पे more of a presentation work. So please थोड़ा सा theoretical है तो आपको ध्यान देना है that square of. Okay, मैं थोड़ा सा question भी लिखूंगी क्योंकि तब तक आपको समझ में नहीं आएगा. एंड फिर से मैं कह रही हूँ, मैं यहाँ पे आपको परफेक्ट प्रेजेंटेशन नहीं दे रही हूँ, that I'll give you in the worksheet. यहाँ पे कॉन्सेप्ट समझते हैं. तो यहाँ पे क्या कह रहा है, that show that square of any positive integer, okay, is of the form. ये हमने प्रूफ से तो देख लिया, एग्जांपल से तो देख लिया. अब इसको प्रूव कैसे करना है, is of the form 3q plus 1 और 3q plus 2. ओके, तो हमें यहाँ पे एग्जांपल नहीं लेने की भाई 1 4 6 9 1 4 ये 9 16 25, ये हमें नहीं लेना. हमें इसको जनरलाइज फॉर्म में ही प्रूव करना है. ओके, आपने देख लिया एक्चुअली वो करता ही है डिवाइड. सो लेट्स सी. तो पहले हम लिखेंगे देखो बाय सॉल्यूशन जब हम स्टार्ट करेंगे तो बाय यूक्लिड डिवीजन लेमा. ओके, ऐसा कोई शॉर्टकट अलाउड नहीं है, बस मैं अभी फिलहाल आपका टाइम वेस्ट ना हो इसलिए लिख रही हूँ, बट प्लीज सोच लीजिए. तो वी नो दैट a is equal to bq plus r. ठीक है, a is equal to bq plus r. ये हमारा क्वेश्चन है, राइट. ये हमारा यूक्लिड डिवीजन लेमा से मिलता है. तो इन दिस केस हमें यहाँ पे क्या चाहिए 3. तो एक है कि ये जो आपको क्वेश्चन है यही आपको हिंट दे रहा है. मैंने पहले भी आपको कहा यू हैव टू फोकस ऑन द क्वेश्चन पार्ट. जब आप क्वेश्चन पे फोकस करेंगे तो आइडिया आपको मिल जाएगा कि आपको करना क्या है. तो यहाँ जो ये है दिस विल गिव यू व्हाट इज योर बी. हमें मिल गया बी. तो देयरफॉर a is equal to 3q plus r. ठीक है, अब इस r को ओके यहाँ पे, और एक है कि यहाँ पे ऑलरेडी इनको q में चाहिए. So naturally I'll use some other alphabet here. Okay, so let me use it say bm plus r, क्योंकि मैं कोई भी नंबर ले सकती हूँ यहाँ पे. Okay, so I'll write down this is 3m plus r. और अब मुझे r के लिए क्या कंडीशन मिल रही है, तो r is between 0 and 3. इसका मतलब क्या है, r है 0 1 या 2. तो इसका मतलब ये हुआ कि मुझे तीनों रिमाइंडर्स को अलग अलग करके देखना पड़ेगा कि मेरा आंसर क्या आ रहा है. तो पहला वाला केस 1. ओके, तो इसमें मैं ले रही हूँ रिमाइंडर 0. तो a is equal to 3m plus 0 मतलब 3m हो गया. अब हमें क्या है, हमारा क्वेश्चन पे ध्यान दीजिए, स्क्वायर ऑफ इंटीजर. सिर्फ इंटीजर से काम नहीं चलेगा, स्क्वायर. तो हमें यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, स्क्वायरिंग करना पड़ेगा.
So we square both the sides. So on squaring, what do you get? A square. यहाँ पे 3 का square, 9m का square, 9m square. ठीक है? तो इज इट अ मल्टीपल? तो ये जो 9m स्क्वायर है, इसको आप कैसे लिखोगे? इसमें ऐसे या ऐसे? तो डेफिनेटली इट इज मल्टीपल ऑफ 3q. आई एम सॉरी दैट आई मे बी अ स्टूडेंट व्हिच आर कमिंग फॉर द फर्स्ट टाइम, बट ये टोटल थियोरेटिकल टॉप क्वेश्चन है. ओके, दैट्स व्हाई आई केप्ट इट लास्ट दैट यू डोंट गेट बोर्ड अप. तो इसको मैं यहाँ पे 3 into 3m स्क्वायर के फॉर्म में लिखूंगी, बिकॉज मुझे 3 के फॉर्म में चाहिए. सो आई टेक द 3 आउट. ये भी आपको हमेशा हिंट क्वेश्चन में से मिल रहा है कि आपको आंसर कैसे चाहिए. ओके, तो 3 विद सम नंबर q एंड समथिंग लाइक दिस. तो नेचुरली मुझे 3 चाहिए कॉमन, तो 3. तो ये जो 3m स्क्वायर है, इसको मैं बना देती हूँ लेट बी एनी इंटीजर बी q, क्योंकि मुझे q में आंसर चाहिए. सो लेट 3q एंड व्हाट इज दिस 3m स्क्वायर which is equal to q, some positive integer. Okay, हम लिख देंगे वहां पे let q be any positive integer. जो भी 3 into m स्क्वायर आया उसको हम q मान लेते हैं. तो आपने देखा a स्क्वायर को 3q फॉर्म में डाल दिया हमने. अब मेरा केस 2 क्या है? रिमाइंडर 1. अब यहाँ पे आपका अगेन कॉन्सेप्ट क्या हुआ? देखिए स्क्वायरिंग. स्क्वायरिंग मतलब दोनों तरफ स्क्वायर. तो अब यहाँ पे अगेन मेरी प्रॉब्लम आती है. when I check the paper I feel so bad that though I go on teaching the same thing but then students make mistake. क्या है आपकी right hand side? a plus b the whole square. And what is the expansion? It is not a square plus b square, isn't it? It is a square plus 2ab plus b square. Therefore a square 9q square 6q plus 1. ओके सॉरी, हमें m लिखना था, ठीक है ना, क्योंकि हम m ले रहे हैं. क्यों में हमें आंसर लिखना है फिर. ठीक है, तो अब मुझे क्या चाहिए? तो यहाँ पे जो राइट हैंड साइड आपकी आई है उसको अगेन या तो ऐसे या तो ये या तो ये, कौन सा आसान है? लेट्स सी. तो हमारे पास ये देखिए 3 टर्म्स है. 3 टर्म में से एक +1 तो है. चलिए, तो वी ट्राई फॉर दिस. तो ये जो दोनों है तो इसको अकेले रहने दो, मैं छोड़ दो. और इन दोनों को देखिए, isn't it a multiple of 3? Okay, so we write this as 3 common. तो यहाँ पे क्या बचा? 3m square. ओके, प्लस 2m. अब आप कहोगे मैम यहाँ पे m भी कॉमन है, बट सॉरी आई एम नॉट इंटरेस्टेड इन टेकिंग दैट m कॉमन. मुझे कोई लेना देना नहीं, मुझे सिर्फ यहाँ पे क्या चाहिए? 3 चाहिए, इसलिए मैं सिर्फ 3 पे फोकस कर रही हूँ. यहाँ पे हम दूसरे कॉमन फैक्टर्स नहीं निकाल रहे हैं. प्लीज माइंड दिस. ओके, बचा क्या? 1. और अब इसको बना दो q. हो गया, isn't it? तो ये हमारा 1 हो गया, ये 2 हो गया, रिमाइंडर है 2. तो अब फिर से हम लेंगे 3m plus 2. फिर से स्क्वायरिंग. I told you it's a 3 marks question, little lengthy, more of theoretical. So please don't get bored up. Okay. So 3 2s are 6 2s are 12m plus 2. और आप इसको देख सकते हो that plus 2 आ रहा है. फिर से यहाँ पे 3 कॉमन. And you could see this as, isn't it? 3q plus 2. और अब सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या थी? सम हो गया. 3q में ले लिया, 3q plus 1 में ले लिया, 3q plus 2, and the sum is left. No, this is the common mistake done by most of the students. So please, I'm teaching you in well advance. Confusion question क्या था? Show that. So you will say that from 1, 2 and 3 square of जो भी आपका क्वेश्चन था, सिंपली उसको रिपीट कर दीजिए. From 1, 2 and 3 we can conclude that square of any positive integer can be of the form 3q, 3q plus 1, 3q plus 2. Okay, so something is there. क्या मैंने, okay, हाँ, I'm sorry. Oh, see, I told you no, hurry up में हो जाएगा. I was becoming restless. अब यहाँ पे, very good, thank you. तो अब इसका जब हमने लिया, मैं कहाँ हूँ? Okay, मैंने क्वेश्चन कुछ अलग लिखा था. Okay, using अच्छा 3m plus 1. Okay, यहाँ पे 3m plus 1 है, ये नहीं है. I'm really sorry for this. Okay, so 3m plus 1. तो अब यहाँ पे जो कॉमन है, now look at this part. Thank you, Janvi.
9m² प्लस 12m प्लस 4। अब यहाँ पे देखिए, अब आप इसको, ये मल्टीपल ऑफ 3 नहीं है, ओके, तो नेचुरली मुझे यहाँ पे स्प्लिट करना पड़ेगा, एंड व्हेन आई स्प्लिट इट आई गेट दिस एज 9m² प्लस 12m प्लस 3 प्लस 1। तो अब ये देखिए, पूरा मल्टीपल ऑफ 9 आ गया, आई मीन पूरा मल्टीपल ऑफ 3 आ गया, सो आई गेट दिस इज 3m² plus 3, I mean 4m plus 1 and this plus 1 here. So now, isn't it say 3q plus 1, isn't it? तो हमने कोई भी तरीके से लिया, it is of the form 3q plus 1 only. Yes, इसके दो ही फॉर्म है, सॉरी आई जस्ट ओवरलैप द क्वेश्चन, सो इट इज 3q और 3q plus 1 फॉर्म में लेना है। आई एम रियली सॉरी फॉर दैट। तो इसका मतलब ये हुआ, हमने पहले देखा कि हमें दो फॉर्म मिल रहे हैं, बट यहाँ पे हमें न्यूमेरिकली नहीं करना है। सो एक ही चीज इसमें ध्यान रखनी है, ऐसा ही एक क्वेश्चन है क्यूब, तो नेचुरली आपको क्यूब का फॉर्मूला रिवाइज करना है। इसमें जो भी यहाँ पे आपका क्वेश्चन में जो नंबर दिया है, जनरली आप सारे क्वेश्चन में उसी को भी ले रहे हैं, बट यहाँ पे एक ही एक्सेप्शनल क्वेश्चन है जो सिर्फ मैं क्वेश्चन डिस्कस करूंगी, बिकॉज द मेथड इज सेम वे। आई होप आई एम वेरी क्लियर विद दिस, दो आई यू नो आई गेट मतलब यहाँ पे थोड़ा सा कंफ्यूजन मैंने किया, बट आई होप इट इज क्लियर। तो ये प्लस 1 में ही आएगा। आई होप एवरीवन इज क्लियर। थैंक यू जानवी, आई होप आई एम वेरी क्लियर। तो 3q plus 1 फॉर्म ही आएगा। सो दैट मीन्स स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर, हमेशा, मतलब आपने नंबर्स लिखे भी देखोगे तो square of any positive integer is either with the multiple of 3 or with the multiple of it is of the form 3q plus 1, and ये आपको कंफ्यूजन यहाँ पे लिखना जरूरी है। आई होप एवरीवन इज विद मी। ओके, अब जो मैंने कहा कि यहाँ पे जो भी आपके क्वेश्चंस है, जनरली इस टाइप के जो क्वेश्चंस आते हैं, ओके, सारे क्वेश्चंस में आपको जो यहाँ पे नंबर दिया है उसी नंबर को आपको भी लेके चलना है। There is only one exception for this, यही आपका टेक्स्ट बुक क्वेश्चन है, which says that cube of any integer, okay, I'll just read the question, using Euclid division lemma, show that the cube of any positive integer, cube, तो naturally आपको क्यूबिंग करना है, जैसे हमने यहाँ स्क्वायरिंग किया, is of the form 9m plus 1 9m plus 8। क्या मैंने कहा? I'm not proving it whole, I'm just giving you the hint that what I'm going to do with this. I'm very sorry now. Really exhaust हो गया। 9m, 9m plus 1 and 9m plus 8। तो अब यहाँ पे जब मैंने B9 लिया, so can you think of R? क्या होगा? 0 1 2 3 4 5 6 7 8। Oh my God, such a long one, and just for 3 marks, so difficult. Okay, तो ये चीज आपका यहाँ पे एक एक्सेप्शनल है, okay, which has to be remembered by you। यहाँ पे हमने जो इरेशनल नंबर में प्रॉपर्टी की थी वो, when a number is divisible by 9, it is always divisible by 3। याद आया? When a number is divisible by its square, it is always, its square root is a factor, isn't it? So when a number is divisible by 9, it means it is always divisible by 3, and therefore in this case, दो भी यहाँ पे 9 दिया है, हम b को लेंगे 3। I hope I'm very clear with this, ठीक है? I hope I'm very clear with this। आप 0 1 2 0 to 8 पूरे 9 केसेस डिस्क्राइब नहीं करोगे, और ये आपको एक्सप्लेन करने की भी जरूरत नहीं है। इट इज अंडरस्टूड because you have learned it in your lower classes, you have learned it, you have revised it। When a number is divisible by 9, it is always divisible by 3। और इसलिए यहाँ पे दो मैंने सब में बताया कि जो यहाँ है वो यहाँ, सपोज यहाँ 5 होता तो अब B5 लोगे, यहाँ 6 है तो B6 लोगे, but only for 9 because it goes very long, so we use this concept कि जब 9 से डिविजिबल है तो 3 से है, so just याद रखना है। I know this is bit, you know, way of writing is bit complex, but it comes as a same, और इसमें typical questions है, okay। मैंने इस चैप्टर की यही खासियत है, आपने देखा कि हमने 5 से 6 टाइप के सम्स किए हैं, और उसमें जो 4 टाइप के, 2-3 टाइप तो आपके कैलकुलेशन है, डेसिमल और वो सब है, ठीक है, पर जो बेसिकली जो 3-4 टाइप के क्वेश्चन है जो आप पहली बार कर रहे हो, इट्स अ टिपिकल वे ऑफ डूइंग इट। तो यदि आपने वो होता है ना कि वो एक पकड़ लिया, उसकी जो स्टाइल पकड़ ली, तो इट इज नथिंग डिफिकल्ट फॉर यू, बट हाँ वही चीज है दैट यू हैव टू प्रैक्टिस इट। ये तुरंत 1 या 2 बार में नहीं आएगा आपको, यू नीड टू प्रैक्टिस अ लॉट फॉर दिस सम, ओके।
तो इस हिसाब से आई हैव क्लियर्ड अप. फिर भी प्लीज आपको कोई डाउट हो, यू प्लीज कम्युनिकेट. मैंने आपको ग्रुप में कमेंट करने से मना किया, मुझसे कमेंट करके मुझसे बातें करने के लिए मना नहीं किया. सो बी इन टच. ओके, कमेंट. आपको जो भी कुछ डाउट्स है आप डिस्कस करिए. मे बी थोड़ा सा वो नहीं होगा बिकॉज लास्ट वीक आई वाज रियली वेरी बिजी विद द रिजल्ट वर्क ऑल्सो. तो मुझे थोड़ा सा टाइम कम मिला है, इसलिए वर्कशीट भी लेट पहुंची आपके पास. सो आई सी टू इट दैट आई गिव इट एट द अर्लीस्ट. इस टाइप के क्वेश्चन के इसमें मैं सॉल्व एग्जाम्पल्स भी डालूंगी. और एक क्वेश्चन अभी बाकी है करना, नॉट एंडिंग ऑफ द सेशन. आफ्टर दैट वी कंप्लीट आवर चैप्टर. यदि आपके पास यदि वो वर्कशीट वाला पार्ट हो, ओके, तो प्लीज ये ऑब्जर्व करना जो मैं अभी बता रही हूँ. एक सिंपल सा आंसर मैं बता रही हूँ, बट उसकी एप्लीकेशन आप देखना लेटर ऑन. मैंने ऑलरेडी वो वर्कशीट में भेजा हुआ है. ओके, तो द क्वेश्चन वाज लाइक समथिंग लाइक दिस. और इस टाइप के लिमिटेड ही क्वेश्चंस हैं, 3 4 5 ही क्वेश्चंस हैं. और जो एक दो डिफिकल्ट अलग ही है पूरे, जो मैं एक्सप्लेन करूंगी. फिर भी आपको कोई डाउट हो तो प्लीज आप बता देना. तो वो डिफिकल्ट एक दो का मैं वीडियो एक्सप्लेनेशन भेज दूंगी. बट आई वॉन्ट कमेंट फ्रॉम यू चिल्ड्रन, आई वॉन्ट रिक्वेस्ट फ्रॉम यू. वो बोलते हैं ना कि थाली तो परोस दी, और कुछ ज्यादा चाहिए तो आपको मांगना है. तो यू डोंट रिस्पॉन्ड. मेरी मुझे यहाँ पे लास्ट 4 दिन में देयर वाज नो क्लास 10th कमेंट फ्रॉम यू. तो आई गेट वरीड दैट व्हाट इज गोइंग ऑन. लाइक पूरे कहीं मतलब कहाँ चले गए सारे, मार्क्स पे चले गए कि क्या. देयर इज नो रिस्पॉन्स फ्रॉम योर साइड. सो बी इन टच. ठीक है. आई थिंक ऑलमोस्ट अभी शाम तक में आपका टाइम टेबल आपके टीचर्स से पास से आ ही जाएगा. इट हैज ऑलरेडी बीन पुट अप इन द व्हाट्सएप ग्रुप ऑफिशियली. तो आ गया है. सो वी विल नेक्स्ट टाइम वी आर फॉलोइंग अप द अकॉर्डिंग टू टाइम टेबल. ठीक है, वीक में 3 days रखा है. सो आई थिंक इनफ टाइम फॉर अस. एंड 2 o'clock का सेशन होगा. अब मैं एक लास्ट एग्जाम्पल सॉल्व करती हूँ एंड देन वी एंड अप आवर सेशन. जो मैंने आपको वर्कशीट में दिया है, यू रिमेंबर दोस कलरफुल थिंग्स आई ट्राइड सो दैट यू अंडरस्टैंड. बट पता नहीं क्या है उसका, बच्चों को समझ में क्यों नहीं आता है. वो एक टास्क है. मैं यहाँ पे बहुत छोटा सा एग्जाम्पल ले रही हूँ उसके लिए. Okay, we'll do one thing. I'll send you the video for that. Okay. जैसे कि मैंने दिया यहाँ पे 80 and 56. Okay. तो आपको इसका HCF फाइंड करना है. ओके, तो आपने 80 को डिवाइड किया 56 से, 1 से, 4, 10 minus 6 and here I get 24, 56, 24 2s are 48. I get the 0. So that means by Euclid, अथर्व you are talking about previous question. It is a 3 marks question. जो पहले वाला question अभी जो proof that वाली थी वो 3 marks के question है. पर बहुत आसान है, so you don't need to worry. ये वाला भी जो question है वो generally 2 marks, 3 marks और even MCQs में आता है. Don't ask me why, because I know it's one of the complex question. But ये understand करो तो इतना difficult नहीं है. इसको मैं बाद में वीडियो ही भेजूंगी how to learn it in a shorter way. Okay, तो जब इसको हम यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम से यूज करते हैं तो इट इज 56 into 1 plus 24. ओके, फिर 56 को हम लिखेंगे 24 into 2 plus 8. और फिर हम लिखते हैं 24 is equal to 8 into 3 plus 0. अब मैंने बहुत छोटा सा एग्जाम्पल लिया है, थिंकिंग दैट यू गेट द आइडिया. फिर वो बड़े कॉम्प्लेक्स में वो ऊपर ऊपर जाता है. तो अब इसको करना है कि ये जो आपका HCF है, ओके, से इसको लिखना है 56x minus 80y. ओके, तो मुझे यहाँ पता है कि HCF मेरा क्या है 8. अब 8 इज इक्वल टू, तो हमेशा आपको क्या करना है, मैंने पता है मैंने बहुत सिंपल छोटा सा सम लिया, बट प्लीज अंडरस्टैंड दिस. आपको हमेशा सेकेंड लास्ट स्टेप पे जाना है, उससे स्टार्ट करना है. तो 56 is equal to 24 into 2 plus 8. So can I write 8 is equal to इस 24 into 2 को यहाँ ले जाऊँ. So can I write 8 as 56 minus 24 into 2? I hope it's simple. Okay. आपको HCF को, तो उसके लिए आपको प्रीवियस स्टेप में जाना है कि कोई वहां पे आपका जो HCF है वो रिमाइंडर है. तो रिमाइंडर दिस इज इक्वल टू दिस माइनस दिस, सिंपल अरिथमेटिक. ओके,
अब मुझे क्या चाहिए, मुझे 56 और 80 चाहिए. आई एम नॉट इंटरेस्टेड इन 24. सो आई विल गो विथ माई प्रीवियस स्टेप एंड आई विल रिप्लेस 24. तो मैं यहाँ 24 को कैसे रिप्लेस कर सकती हूँ? तो 24 could be written as this minus this 80 minus 56 into 1 और into 2 ये जो वाला है. ओके, तो इसको मैं ओपन करूँ ब्रैकेट, तो इट इज माइनस 80 into 2 डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी. माइनस इंटू माइनस प्लस, और वन का मतलब कोई वैल्यू नहीं है, सो 56 into this 2. प्लीज बी विथ मी. ओके, अब यहाँ पे देखिए. अब यहाँ पे ना थोड़ा सा एक अलग वे से करना है. जनरली आप क्या करते हो, आप प्लस करने जाते हो, बट मैं इसको इस तरीके से ले रही हूँ. 56 one time, 56 two times. So how many times 56? So it is 56 three times. Could you get this? आपने छोटे क्लासेस में किया, बट जैसे आप बड़े होते हो तो आप बेसिक्स को भूल जाते हो. So this is the only different here. आई होप I'm clear. आपको ब्रैकेट तो समझ में आ गया, बट आप लोग जनरली इस पॉइंट पे कंफ्यूज हुए होंगे शायद. So what is it? 56 minus 80 multiplied by 2 plus 56 into 1. तो इसका मतलब हुआ 56 one time, 56 one time, 56 two times. How many times 56? 56 three times. Minus this 80 into 2. अब कंपेयर करिए. 56x minus 80y. इसका मतलब क्या है? सिंपल. बट हाँ, जब लंबा सम है, डिवीजन आपका एल्गोरिथम काफी लंबे स्टेप में जाता है, 3 to 4 या 5 स्टेप्स में जाता है, then it becomes a bit complicated for you. But generally मैंने देखा है, this has not come in last 5 years, so I will not say it is to be left, but yes, you can understand the concept. और जनरली ये जब एमसीक्यूज में या 1 मार्क 2 मार्क में आता है, तो वो छोटे नंबर्स के साथ आता है, आपको बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स नहीं आता है, बहुत लंबे. ओके, सो आई विल गिव यू 2 to 3 सम्स जो बेसिक्स इसको समझे आपको, एंड अलोंग विद दोस्त. तो दिस इज अ चैप्टर एंडिंग वर्कशीट. थोड़े से सम्स ज्यादा होंगे, ओके, बट नेगेटिव नहीं होना है और टाइम पे काम करना है. कल से आपके पास टाइम टेबल भी आ जाएगा, तो डे वाइज कम से कम 2 से 3 पीरियड्स हैं, तो आपको काम भी उतना मिलेगा. सो नाउ गियर अप, नाउ यू आर इन क्लास 10. ओके, सो टिल नाउ इट वाज हाँ है, रिजल्ट नहीं आया है. आई नो द रिजल्ट शीट इज नॉट विथ यू, बट यस यू आर इन क्लास 10. सो यू हैव टू गियर अप योरसेल्फ, बी पॉजिटिव. थोड़ा सा जो मैंने मांगा हेल्प हो, दैट प्लीज आस्क देम टू अटेंड द क्लास एंड फाइंड आउट व्हाट इज द रीजन. ठीक है, नहीं तो मुझे क्लास ही स्टॉप करनी है, मैं भी नोट्स भेजना शुरू करूंगी. आई एम स्टॉपिंग द लाइव क्लासेस नाउ. ठीक है, ओके, सो आई एम वेरी क्लियर विद इट. जो ये आज हमने किए, नेचुरली डेफिनेटली आई साइन जानवी हैव पेशेंस हियर. मुझे ट्यूशंस लेना मत चालू कर दो प्लीज. सो विल एंड अप द सेशन विद दिस. कोई भी डाउट हो तो मुझे बता दीजिए. थैंक यू, एंड फिल अप द अटेंडेंस विदाउट फेल.